Hello, good morning students. Today we going to discuss objective questions of lesson number 14 statistics. Okay, and again this is the last video and common for 9th and 10th both. For 10th standard no need to write this one anywhere, it is not compulsory. If you want you can, but for standard 9 it must be written in fair book. Okay, previous lectures also 13th, okay, and we already discussed 15th also many days ago before test. Okay, so 13, 14, 15, all three sessions, all objective question you have to write in fair book. Okay, this is the instruction for standard 9 and questions are taken from workbook. So if you are having now, just open it. Okay, now look at first question, that is related to true false. What is given at first? The difference of the highest and the lowest value in the data is called the range of the data. So that is the definition of range. Range is found by difference of highest one and lowest one. Okay. Now look at number 2. The mean of first 10 natural number is 5. If you count, I have not counted here, but if you try to count 1 plus 2 plus 3 plus 4 like this, divide 10, okay, sum divide by 10, then it will be 5.5, not 5. Okay, so statement is false. And I again remind you, whenever this type of series is given, first 10 natural number, odd number, even number, at that time mean and median are always equal. Whenever this type of series, or for 10 standard I can say arithmetic progression is formed, at that time mean and median are always equal. Okay, so here median also 5.5, mean also 5.5, but they have given 5, so false. Number 10, median of the observations. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मिडल वाले को उठा दो, लेकिन मिडल वाले को ऐसे नहीं उठा दो, पहले तो आप अरेंज करो, जस्ट अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. आई हैव written by pencil in increasing order, 1 then 2 then 4 then 6 7 and 10, then 4 and 6 are at middle. 4 and 6 are at middle position, so two observations are there, so take average of both ones. So taking average means sum divide by 2. Okay, so 10 by 2 5, but they have given 4, so wrong. Okay, so understand how to find median. और स्टैंडर्ड 9 वालों को मैंने लास्ट में एक बार बोला भी था कि आप n+1 ये सारी फॉर्मूला नहीं लिखो, सीधा भी मीडियन दे सकते हो. मिडल वाले को आप ले लेना है, मिडल में एक है तो सीधा आंसर मिलेगा, मिडल में दो ऑब्जर्वेशन रहेगा तो दोनों का एवरेज लेना है, जैसे मैंने लिया. और मिडल कैसे निकाले, तो फर्स्ट एंड लास्ट को निकाल दो, सेकंड एंड सेकंड लास्ट को निकाल दो, ऐसे थर्ड एंड थर्ड लास्ट को निकाल दो, ऐसे क्रॉस कर करके मिडल में जो आए वो देख लो. ओके. Number 4, mean of the observation 15, 15 minus 15 minus 15, 15 minus 15 is 0. तो देखो 3 बार प्लस 15 है और 3 टाइम्स माइनस 15 है, तो ऑब्वियसली सम विल बिकम 0. देखो मैंने करके दिखाया है सामने, सारे प्लस को आगे लिया, 3 बार आया और 3 बार माइनस 15 आया, तो ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया. तो 0/6 मीन कैसे करते हो तो पता है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या तो सिंबल में बोले तो सिग्मा xi अपॉन n. सिग्मा xi मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, तो 0/6 0, तो ट्रू है. टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस. वो एक्चुअली 9th को मैंने अभी नहीं करवाया है, लेकिन एक समझ लो, हिस्टोग्राम जब आप ड्रॉ करते हैं ना तब क्लास बाउंड्री लेते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं बाद में मैं आपको भेज दूंगा, तीनों टाइप के ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस पर क्या क्या होता है. ओके, तो मैं आपको पीडीएफ के साथ ये भेज दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है इमेज, वरना मैं बता देता. ओके, सो इन हिस्टोग्राम एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज ली जाती है. क्या ली जाती है, क्लास बाउंड्रीज, जैसे 10 to 15, 15 to 20, तो यहाँ बाउंड्रीज है. ओके, और क्लास मार्क है ना वो मिड वैल्यू है,
तो वो नहीं ली जाती, तो इसलिए वो फॉल्स है। ओके, मैं आपको वो देने वाला हूँ बाद में, तो तब भी ज़्यादा समझोगे आप। नंबर 1, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 14, 18, 22, x एंड 16 इज 18 देन x। ये रिवर्स टाइप का सम हो गया। क्यों? मीन आपको दिया गया है 18, अंदर एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, वो आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। आपको थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन दिया है, एक अननोन है और मीडियन 18 दिया गया है। ओके, तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने फिर से लिखा है, मीन ऑफ 14, 18, 22, x 16 इज 18, मतलब मीन इज 18, लेकिन किस किस का? 14, 18, 22, x एंड 16, 5 ऑब्जर्वेशन को। देखो मैंने मीन फाइंड करने की जो प्रोसेस थी ऐसे ही मैं आगे बढ़ा हूँ, सारे ऑब्जर्वेशन रखा है, सब कुछ ऐसे ही रख दिया, लेकिन लास्ट में मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया। देखो 5 को शिफ्ट किया, ऊपर नंबर का एडिशन किया तो 70 मिला, 70 प्लस x। ओके, तो मैंने x को सब्जेक्ट बनाया तो मुझे मिला 20, तो आंसर भी 20। ऐसे क्वेश्चन हम 9th में भी आगे एक वीडियो लेक्चर में मैंने दिया था, वो भी आपको लिखना है और आज का भी लिखना है। तब भी मैंने ये सारे करवाया था, शायद 1-2 रिपीट भी होगा। ओके, रिपीट होगा तो भी फिर से आप लिखोगे। ओके, ऐसे मत जाओ कि ये आ गया नहीं लिखा है, ऐसे खमोखम कन्फ्यूजन में मत जाओ। ओके, तो समझ गए, ये बहुत सिंपल है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करते हैं? वो इक्वेशन सॉल्व करने में मिस्टेक कर देते हैं, एक्स को सब्जेक्ट बनाने में। 5 इंटू में गया, बाद में 70 माइनस में गया, और क्लियरली दोनों साइड ठीक से लिखो, आगे देयरफॉर की साइन करो। ओके, ये एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव नहीं है ऐसा मान के आगे बढ़ो, डिस्क्रिप्टिव है ऐसा मान के। ओके, ऐसे दूसरा एक रिवर्स ऑर्डर में दिया है, वो भी देख लो। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर 17, 22, a-1, a+3, 30, 35 इज 26, मीन्स मीडियन इज 26। आपको फाइंड करना है। ये भी देखो ऊपर वाले की तरफ, ऊपर मीन का रिवर्स सम था, यहाँ मीडियन का रिवर्स सम। रिवर्स सम मतलब समझ गए ना, मीडियन दिया गया है, अभी तक हम फाइंड करते थे, यहाँ दिया गया है, और ऑब्जर्वेशन दिया जाता था, वो यहाँ एक नहीं है, 1-2 नहीं है, इसलिए मैं इसको रिवर्स सम बोलते हूँ। तो यहाँ पे मीडियन फाइंड करने की प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ो, आगे जाके एक को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लो। देखो मीडियन ऑफ 17, 22, a-1, a+3, 30, 35 इज 26, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये अरेंज करके देते हैं, क्योंकि हम अरेंज नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ए इज अननोन, वी कैन नॉट से what is the value of a-1 and a+3, so we cannot arrange them, so they must give by arranging only. okay, तो देखो मैंने मीडियन, मिडिल में कौन कौन से आए, देखो दोनों अननोन ही मिडिल में आए हैं, a-1 a+, लेकिन 2 आए हैं तो एवरेज लिया है, a-1 प्लस a+3 डिवाइड बाई 2, और m, अभी देखो m की वैल्यू रख दी 26, वो मीडियन दे देते हैं। तो यहाँ मिला a+a2a -1 + 3 2 एंड अपॉन में 2, तो ये इक्वेशन बन गई। अभी इक्वेशन को सॉल्व करो, तो पहले डिनोटर वाला 2 मल्टीप्लाई में गया तो 26 2 ज़ा 52 हो गया। ओके, ये सारे स्टेप मैंने बताए नहीं है, क्योंकि ऊपर मैंने सारे स्टेप बताया था, देखो ऊपर वाले में। ओके, यहाँ नहीं बताया है। बाद में +2 वाला 2 है ना, वो माइनस में गया तो 52 - 2 50 हो गया। बाद में जो मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट 2 है वो डिवीजन में गया तो 50/2 25 हो गया। इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। ओके, तो ये मीन और मीडियन का दोनों रिवर्स सम, आगे 1-2 ऐसे सम हैं मैंने होमवर्क में दे दिया है, तो ठीक से समझ लेना। ओके, अभी 4 नंबर होमवर्क में है, देख लेते क्या है। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 42, 47, 58, 51 एंड 52 इज, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन दिया है आपको, मीन फाइंड करना, बहुत सिंपल सम है। नंबर 5 वो होमवर्क में, मतलब आप डायरेक्ट फेयरबुक में ही करोगे। ये मैंने जो ये वीक में जितना भी वर्क दिया ना 9th वालों के लिए, वो आपको होमवर्क बुक में करके फेयरबुक में नहीं करना, सीधा फेयरबुक में कर सकते हो। मतलब मान लो ना होमवर्क नहीं है ऐसा मान लो, लेकिन सीधा फेयरबुक में करने के लिए आपको करना पड़ेगा सॉल्व, बहुत कम है। The mean of 20 observations is 17.5. Then the sum of all those observations is, पहले ठीक से समझो वो क्या देते हैं। मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस मतलब n 20 है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन 20, व्हाट इज मीन 17.5, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 17.5, मतलब समझ गए ना, पूरा स्टेटमेंट ठीक से समझ लो।
सम ऑफ ऑल दोज ऑब्जर्वेशंस मतलब सिग्मा एक्स आई, वो फॉर्मूला ठीक से याद रखना, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये इसका सॉल्यूशन। तो यू आर गिवन एन एक्स बार एन आस सिग्मा एक्स आई, सिंबॉलिक देखो तो ऐसी बात है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। नंबर 5 देखो, मैंने सिंबॉलिक लिस्ट बनाया, एक्स बार इक्वल टू 17.5, एन इक्वल टू 20, सिग्मा एक्स आई इज नॉट गिवन। तो बस फॉर्मूला ये याद रखना है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन। ये नोटेशन में फॉर्मूला है, ऐसी वर्ड में भी फॉर्मूला आती है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो 17.5 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन 20, मैंने सारी वैल्यू रख दी, बस सिग्मा एक्स आई को सब्जेक्ट बना दो। तो 20 मल्टीप्लाई में आया, मल्टीप्लाई हुआ 350, कैसे हुआ मैं साइड में मैंने बताया, पॉइंट रिमूव किया, कटिंग किया, वो देख लेते आप। ओके, 5 नंबर का सॉल्यूशन और इसका रफ वर्क भी मैंने साइड में बताया, वो आप देख सकते हो। तो समझ गया, पहले ठीक से सिंबॉलिक लिस्ट बना दो और क्या मांगा गया वो भी देखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब सिग्मा एक्स आई, मीन मतलब एक्स बार, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब एन, एवरीथिंग गिवन जस्ट सब्जेक्ट सिग्मा एक्स आई। ओके, सो नंबर 5 था। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, नंबर 6 द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 3/7, 5/9, 4/7, 4/9 इज। तो यहाँ भी सिंपल है, मैंने एक होमवर्क में नहीं दिया था 4 ऐसा ही सम है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ऑब्जर्वेशन फ्रैक्शन में है, ऑब्जर्वेशन आर इन फ्रैक्शंस। ओके, तो आपको शायद नया लगेगा, तो इसलिए मैंने कर दिया है 6 नंबर, वहाँ फिर से क्वेश्चन भी मैंने लिखा होगा। देखो ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं, 3/7, 5/9, 4/7, 4/9, इसका मीन चाहिए। तो जैसे करते थे ऐसे मैंने किया देखो, लेकिन फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने एलसीएम नहीं लिया। पहले मैंने ट्राई की कि अपॉन में 7 वाले को साथ में ले लो, डिनोटर 9 वाले को साथ में ले लो, तो इसका तो सीधा हो जाएगा ना, इसमें एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा 3 + 4 7 और यहाँ भी 5 + 4 9। ओके, समझते मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने थोड़ा अरेंजमेंट किया है, कैसे, अपॉन में 7 वाले को साथ में लिया, अपॉन में 9 वाले को साथ में लिया, बाद में मैंने इसमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो पहले दो को एल्स टोटल करो तो सीधा ऊपर 7 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है तो सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर दो। बाद में 5 + 4 9, वो भी सीधा हो गया। ओके, तो सीधा ऊपर देखो 7 + 7 1 और ऐसे 9 + 9 भी 1 हो गया, तो रियली हमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, तो सीधा 2/4 मतलब 1/2, ठीक से समझ लो फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला रिटर्न, ऑल ऑब्जर्वेशंस मीन्स वैल्यू आर प्लेस्ड, देन आई ट्राई टू मेक टोटल ऑफ सेम डिनोमिनेटर। तो पहले दो को और लास्ट दो को मैंने अरेंज करके ऐड करने की ट्राई की, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम आ गया, मतलब 1 1 बन गया। ओके, तो 1 + 1 2, अपॉन में 4 तो था ही, कटिंग हुआ तो 1/2 आंसर मिला। ओके, तो इसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन फ्रैक्शन की वजह से आपको शायद नया लगे, इसलिए मैंने सॉल्यूशन भी आपको दिया है। अभी नंबर 7, ये आप समझ सकते हो, टेबल वाला मतलब ग्रुप डेटा है। ओके, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको टेबल बनाना पड़ता है, इसकी फॉर्मूला डिफरेंट होती है। इसमें सिग्मा एक्स आई बाई एन था ना, यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बनता है। फॉर्मूला एक्चुअली वही है, लेकिन थोड़े दिखावा इसका बदल गया। तो इसमें आपको टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लिस्ट नहीं है। देखो ऊपर 4 में सीधा लिस्ट में कोमा कोमा करके ऑब्जर्वेशन दिया, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ 10 3 टाइम्स है, 11 4 टाइम्स है, ऐसा मतलब होता है। तो वहाँ देखो मैंने टेबल बनाया है, टेबल कैसे बनाना है वो आपको पता है, हमने सीखा था ऐसा सम कहाँ पर 14.4 में, 9th के लिए बात कर रहा हूँ, 14.4 में 6 क्वेश्चन में हमने ऐसा देखा था। तो देखो मैंने टेबल बनाया, पहली दो कॉलम तो ऐसे कॉपी किए, देखो एक्स आई एंड एफ आई, दे आर नथिंग बट जस्ट कॉपी। बाद में एफ आई एक्स आई, एक नई कॉलम आपको बनानी पड़ेगी, थर्ड वाली। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है ना, मतलब तो देखो मैंने बताया भी है, 30 कैसे आया, 44 कैसे आया, 72 कैसे आया। ओके, मतलब मैंने मल्टीप्लाई, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने तो एक्सप्लेन करना था ना, इसलिए वो 10 × 3 11 × 4 लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए।
इसका टोटल करो, पूरी कॉलम का टोटल करो तो आगे सिग्मा लग जाता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बन गया। ऐसे एफ आई वाली कॉलम का टोटल करो तो सिग्मा एफ आई बन गया। एक्स आई का टोटल नहीं करना है, सिग्मा एक्स आई की कहीं पर ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये खामो खाम यहाँ कुछ टोटल करना नहीं है। ओके, यहाँ ओनली सेकंड एंड थर्ड कॉलम का टोटल करना है, समझ गए। बस बाद में फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला रखने के बाद वैल्यू प्लेस करो, बस सिंप्लीफाई करो तो 12 आंसर आए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि टेबल वाला सम है और मीन फाइंड करना है, तो हमें ऐसे टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके, और सेकंड और थर्ड कॉलम का टोटल कर दो, वही ज़रूरत है हमें, और वैल्यू फॉर्मूला में रख दो, सिंप्लीफाई करो। ओके, ऐसा सम बाद में मैंने होमवर्क में दिया है। हाँ, बाद में नंबर 8, यहाँ देखो रेंज फाइंड करनी है, वो तो आपको पता है ना, लार्जेस्ट वन एंड लोवेस्ट वन, मतलब बिगेस्ट एंड लोवेस्ट स्मॉलेस्ट, इसका डिफरेंस। तो देखो स्मॉलेस्ट वन 13 है और बिगेस्ट वन 41 है, बस दोनों का डिफरेंस ले लो, बात खत्म। फिर भी मैंने शायद किया है, देख लेते हैं। देखो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, 41 माइनस 13 28, वेरी सिंपल। ओके, ये तो आपको पता है ना, अपना पहला क्वेश्चन भी हमने ऐसा किया था, ट्रू फॉल्स में दिया था ना कि व्हाट इज द रेंज। 9 एंड 10 गिवन होमवर्क देख लेते हैं, 9 एंड 10 होमवर्क में है तो क्या है एक्चुअली। ये सेकंड पेज पर 9th एंड 10th इन होमवर्क। look it for a given frequency distribution sigma fxi and sigma fi। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, हमने एक टेबल बना के फाइंड किया था ना, वो सीधा दिया गया था, आपको टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड सिग्मा एफ आई की वैल्यू दी गई है, डायरेक्ट हो जाएगा, एक दो लाइन में आंसर। ऐसे ही द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीडियन कैसे फाइंड करना हो तो पता है ना, लेकिन अरेंज करना नहीं भूलना है आपको, यू हाउ टू अरेंज फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ओनली। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ से ऐसे आंसर दे 50, देखो विदाउट अरेंजमेंट आप ट्राई करोगे तो 25 एंड 50 मिडिल में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अरेंज नहीं किया। ओके, तो याद रखो, अगेन आई जस्ट रिमाइंड यू, डोंट गिव आंसर ऑफ मीडियन विदाउट अरेंजिंग द गिवन ऑल ऑब्जर्वेशंस, आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, एनीवे। अब ये सारे ब्लैंक्स देख लेते हैं हम। Data regarding the number of different types of trees grown in your school compound is a primary data। देखो मैं 9th वाले को अभी तक प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बताया, अभी ही बता देता हूँ। प्राइमरी मतलब क्या है, आप खुद जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, इसको प्राइमरी बोलते हैं। जैसे मैं क्लास में आऊँ और सभी को एक एक का मार्क पूछ के डेटा कलेक्ट करूँ, तो मेरे लिए वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन वही डेटा मैं स्कूल को दे दूँ ना, तो स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल के ट्रस्टी के लिए वही डेटा सेकेंडरी हो जाएगा। क्यों? जो कलेक्ट करते हैं इसके लिए वो डेटा प्राइमरी है, जो किसी का उठा के यूज़ करते हैं इसके लिए वो डेटा का सेमी डेटा सेकेंडरी बन गया। समझ गए आप? तो बस इतना ही समझ लो। तो फर्स्ट में प्राइमरी क्यों लिखा है समझ लो, क्योंकि आप खुद ट्री काउंट करने के लिए या ट्री देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए। मतलब आप खुद जा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं डेटा, इसलिए। अभी देखो सेकंड में, द डेटा रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन रिसीव फ्रॉम टीवी। देखो आपने टीवी में से लिया, आप खुद नहीं गए थे, तो वो सेकेंडरी डेटा है। समझ गए? टीवी वालों के लिए प्राइमरी होगा, लेकिन आपके लिए वो क्या है? सेकंड। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है वो। हाँ, थर्ड तो आप समझ सकते हो ना, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, वही रेंज, वो तो आपको पता है। इन अ डेटा इफ सम गिवन फिक्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अकर n टाइम्स, कोई वैल्यू सपोज 5 टाइम्स रिपीट हुई तो हम क्या बोलते हैं? सपोज 3 5 टाइम्स आई, तो मैं बोल सकता हूँ 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है। फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ नहीं, हाउ मेनी टाइम रिपीट। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू इज सेड टू बी n। ओके, तो वो रिपीटिंग कितने टाइम आए हैं इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास साइज और क्लास विड्थ। मान लो कि मैंने 10 to 20 का क्लास है मेरे पास, 9th वालों को पता है, हमने वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 14.2 में टेबल बनाया था ना टेली मार्क्स करके, इसमें हम ऐसे क्लास लिखते थे। तो इसकी क्लास साइज कौन सी रखती है? मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 है, तो 10 10 10 की है, इसको क्लास साइज बोलो या क्लास विड्थ बोलो। मान लो कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसा है, तो इसमें 5 5 की क्लास साइज हुई। ओके,
when different value of a variable along with their corresponding frequencies are represented in a tabular form, that table is called. ये बोल रहे हैं कि हमने अभी नहीं देखा था वो डेटा 6 नंबर में, वो कौन से डेटा की बात करें मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन 7 में है ना ऐसा डेटा, क्वेश्चन 7 ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं देख लेते हैं। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन अनग्रुप। देखो अनग्रुप डेटा नहीं हो, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, इसमें क्लास नहीं है, ओनली 5 होगा, ओनली 10 होगा, लेकिन 5 to 10 ऐसा नहीं होगा, समझ गए। तो इसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्लास है तो 7th में देखो, व्हेन डिफरेंट क्लासेस along with their corresponding frequency are represented in a tabular form, then table is called group frequency distribution। समझ गए, वो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ग्रुप। लेकिन दोनों डेटा तो ग्रुप डेटा में ही आता हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे अनग्रुप वर्ड लिखा है। 6 में देखो अनग्रुप वर्ड लिखा है लेकिन डेटा ग्रुप्ड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आगे अनग्रुप वर्ड लिखा है। तो समझ गए हम क्या बोलते हैं, कोमा कोमा करके डेटा मिलते हैं, इसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं। टेबल वाले को सारे को ग्रुप डेटा बोलते हैं, टेबल वाले सारे डेटा को ग्रुप डेटा बोलते हैं। अभी आपके माइंड में कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये टेबल वाला है फिर भी 6 में अनग्रुप वर्ड क्यों आया। ये इसलिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है ना, इसके आगे अनग्रुप आया, ओनली अनग्रुप वर्ड नहीं है, समझ गए। हाँ, इन हिस्टोग्राम जो मैंने बोला था आपको, ट्रू फॉल्स लास्ट ट्रू बोलता है ना, तब बोला था कि वहाँ एक्स एक्सिस पर क्लास मार्क नहीं आता, बाउंड्री पॉइंट आते हैं। ओके, वो मैं आपको देने वाला हूँ। और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी टाइप का ग्राफ हो, वाई एक्सिस हैविंग ऑलवेज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो वो तो आप 9 तो कैसे भी याद रखो, कोई भी ग्राफ के लिए 3 टाइप का ग्राफ होता है। एक बार ग्राफ होता है, बाद में हिस्टोग्राम होता है, और बाद में फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। ओके, अभी वो बात कर रहे हैं हिस्टोग्राम की। तो हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पर हम बाउंड्री पॉइंट लेते हैं, जैसे 5 to 10 है तो 5 से 10 का बार बनता है। ओके, और वाई एक्सिस पर तो फ्रीक्वेंसी होती है 10। द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मोस्ट ऑफन इन एन अनग्रुप डेटा इज कॉल्ड द मोड, वो तो आपको पता है, मोस्ट रिपीटिंग नंबर। ओके, सो दैट इज वेरी सिंपल। ये मीन फाइंड करने का 4 का फर्स्ट मैंने होमवर्क में दिया है, बहुत सिंपल है, आप कैसे करना आपको पता है। सेकंड वन देखो, इफ द क्लासेस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इन विच क्लास विल बी ऑब्जर्वेशन वैल्यू 20 लाई। तो 20 को आप कहाँ रखोगे, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में। तो हम जब टेली मार्क करके टेबुलेशन कर रहे थे ना, तब मैंने बताया था कि अपर बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब अपर बाउंड्री इज एक्सक्लूसिव, अपर बाउंड्री इज एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास है ना 0 to 10, इसमें 10 नहीं, सेकंड क्लास 10 to 20 है ना, इसमें 20 नहीं, थर्ड क्लास 20 to 30 है ना, इसमें रियली 30 नहीं, 30 नेक्स्ट में। ऐसे यहाँ 20 देखो तो 20 आपको कहाँ लेना पड़ेगा, थर्ड क्लास में। तो इसलिए 20 to 30 में इसका हम टेली मार्क बनाते थे, आपको पता है। ओके, बाद में थर्ड में फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, वो मैंने सॉल्व किया है, करके देखते हैं। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो देखो पहले फॉर्मूला लिखी है, बार बार हम लिखते हैं। बाद में 2 + 3 + 5 + 7 + 11, क्यों प्राइम नंबर किसको बोलते हैं पता है ना, 1 मत लेना, 1 इज नॉट प्राइम, नॉट कंपोजिट, इट इज स्पेसिफिक। देन 2 इज प्राइम नंबर, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 2 को प्राइम नहीं मानते, इसकी जगह 1 को मान लेते, वो गलत है। तो देखो मैंने नंबर लिया, सम किया, 28 आया, 28 डिवाइड बाई 5, 5.6 आंसर आया। ओके, बाद में मैंने जो सम सारे होमवर्क में दिया वो थोड़ा देख लेते हैं हम, वहाँ पर ही जाके। देखो ये सॉरी 5 नंबर, यस ये 4 5, वो तो हमने नहीं किया था, आगे ऐसा सम कर दिया। मैंने बोला था तब कि ऐसे टेबल वाले सम में आपको भी टेबल बनाना पड़ेगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी FI/XI की। ओके, ऐसे बिल्कुल 2 सम आए हैं, तो कैसे करना हो आपको पता है। तो ये दोनों सम डायरेक्ट फेयर बुक में 9th वालों के लिए डायरेक्ट फेयर बुक में आप कर लोगे। ओके, लेकिन थोड़ा रफ वर्क करना तो पहले कर दोगे। ओके, बाद में देखो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन, मतलब उल्टा सम है किसका, मीन का। तो ऐसा सम हमने किया था ना फर्स्ट MCQ, फर्स्ट MCQ की तरह बिल्कुल है, मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है, तो आप देख लोगे।
ओके, तो इसके जैसे इसको भी कर दोगे। बाद में फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, वो भी आप आराम से कर लोगे। फर्स्ट 4 इवन नंबर मतलब पता है ना, 2 4 6 8। काफ़ी सारे स्टूडेंट इवन को ऑड और ऑड को इवन समझते हैं। इवन मतलब कौन सा नंबर, 2 4 6 8 ऐसे नंबर। फाइंड द मोड, वो तो आपको पता है 8। नंबर 9, ऐसा भी सेकंड एमसीक्यू, देखो सेकंड एमसीक्यू में ऐसा था ना, मीडियन का रिवर्स, वहाँ पर जाके इसकी तरह बिल्कुल ये भी कर दो। मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, वो भी आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 सभी का सम करके डिवाइड बाई 7 कर दो। ओके, तो बहुत सिंपल है ये सारे, तो बस यहाँ तक का आपको करना था। तो ये सारा आपका आज का वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने दिया है, कितना हमने लिया है वो देखते हो। पहले 5 ट्रू फॉल्स थे, बाद में बहुत सारे एमसीक्यू था, वो एमसीक्यू अटके थे हम 10 पर, और बाद में फिल इन द ब्लैंक्स थी, इसमें कोई कैलकुलेटिव नहीं थी, थ्योरी बेस्ड है। और बाद में थोड़ा शॉर्ट सम और आए, इसमें से मोस्ट ऑफ मैंने होमवर्क में दिया है नंबर 4 में। ओके, तो सारे क्वेश्चन नंबर लिखो या नहीं लिखो आपके पर है, लेकिन ठीक से नंबर दे के आंसर और सॉल्यूशन लिखना है। आप ऐसा मत समझो कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर ही रख दो, सॉल्यूशन है वहाँ पर सॉल्यूशन देना ही पड़ता है, याद रखना। फेयर बुक में कोई भी डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, अगर सॉल्यूशन है और नहीं लिखा गया तो फिर से लिखना पड़ेगा, क्रॉस आएगा। ओके, तो समझ लेना। ओके, तो आई थिंक बहुत हेल्पफुल है 10th वालों के लिए भी, क्योंकि बहुत बार बोर्ड में भी ऐसा पूछा गया है 9th बेस्ड, इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको भी। लेकिन आप कोई, अभी तो मैंने आगे भी क्लियर किया था, कोई पूछेगा नहीं कि सर कहाँ लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आपको अगर फेयर बुक में लिखना है इन फ्यूचर यूज़ के लिए तो लिख सकोगे। ओके, बस इतना ही है। थैंक यू।